Hello students. So today we are going to start with our lecture number 7 on some basic concepts of chemistry. In previous lecture we left at applications of Avogadro's law. So today we are going to start with atomic masses. In the 19th century it was not possible to determine absolute atomic mass of an element because of the two reasons. First, atom is too small that it cannot be seen even with माइक्रोस्कोप. जो आपके पावरफुल माइक्रोस्कोप है आप उनसे भी नहीं देख सकते. एंड आल्सो कैन नॉट बी आइसोलेटेड. इसको हम देख नहीं सकते इसलिए इसको अकेला नहीं कर सकते. हम किसी एक एटम को अगर हम अकेला लेना चाहें देन वी आर टोटली ignorant about that or how to isolate the atom. The second thing is masses of atom are so small. Masses of atoms are so small that it cannot be weighed with most sensitive of the balance. Most sensitive balance of course available at that time. जो हमारा सबसे सेंसिटिव बैलेंस था उससे भी हम जो है एटॉमिक मास नहीं निकाल सकते थे, वे नहीं कर सकते थे. वे करने की तो बात ही दूसरी थी, इसको आइसोलेट ही नहीं कर सकते थे. तो मैंने आपको एवोगैड्रो लॉ की एप्लीकेशन में लास्ट में ये बताया था कि एवोगैड्रो लॉ देन केम टू द help of scientists in determining the relative atomic masses of the various elements. How that helped us? क्योंकि हमारे equal volume of all gases they have equal number of atoms or molecules. Molecules they consist of a definite number of atoms, that is called the atomicity. So there we calculated the relative atomic mass. So at that time hydrogen was known to be the lightest element. So the hydrogen was assigned a mass 1 without any unit. किसी यूनिट के साथ इसको यूज़ नहीं किया था. Only it was assigned a value 1 because we were using to calculate relative atomic mass. अगर हम यूज़ करेंगे, यूनिट यूज़ भी करेंगे तो they will cancel out. So how they calculated? अगर हम सिंपल देखें तो कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है. अगर हम मान लीजिए V लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लें और V लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस लें एंड वी weigh these two gases, their masses we can calculate by a simple balance. We can take this volume according to the measurable limits of the balance. So the ratio of these two gases, equal volumes at under identical condition, that always come out to be 1:16. अब क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एटोमिसिटी 2 हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों में बराबर हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों एटम्स के एटॉमिक मास को अगर कंपेयर करें तो हमारा जो ऑक्सीजन का एटम है दैट इज 16 times heavier than that of hydrogen if we take the mass of hydrogen as 1. In this way we calculated the masses, relative atomic masses of various elements in the 19th century. But the one difficulty which we encountered by taking the hydrogen as standard, that most of the atomic masses they came out to be in fractions. Then second standard was adopted as oxygen and its mass was taken as exactly equal to 16. But nowadays
carbon is taken as standard and one isotope of carbon 12 C6H12 इसका atomic mass we take it as exactly 12 U. U means unified mass है, ये unified scale पे लेते हैं हम। इससे पहले इसको AMU यूज़ करते थे, अब भी आज की डेट में भी बहुत से लोग इसको AMU भी बोलते हैं एंड दैट इज स्टिल इन यूज़। तो इसका मास हम 12 यूनिट मानते हैं। तो किसी भी एटम का मास निकालना है देन वी कंपेयर इट विद दैट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। इसके दो तरीके हैं, या तो एक एटम ऑफ कार्बन का मास 12 यूनिट मान के आप कंपेयर कर लीजिए, या आप ऐसा कर लीजिए कि 1 यूनिट मास दैट कैन बी टेकन एज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। या तो आप क्या कीजिए, एटम को कंपेयर कीजिए इसका मास 12 मान के विद द कार्बन किसी भी एलिमेंट का, या फिर इसके मास का कार्बन 12 का जो एटम है उसके मास का एग्जैक्टली 1/12 अगर आप लेंगे देन दैट मास कैन बी टेकन एज 1 यूनिट मास। सो यू कैन कंपेयर इट विद दैट। सो नाउअडेज वी डिफाइन एटॉमिक मास एज द नंबर ऑफ टाइम्स an atom of element is heavier than 1/12 of mass of carbon 12 atom taken as 12 यूनिट। मतलब कार्बन 12 के एटम का मास हम 12 यूनिट माने तो उसके एग्जैक्टली 1/12 के कितना भारी है, उससे कितना भारी है, वो उसका कहलाएगा आपका एटॉमिक मास। दैट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। अगर हम इसको नहीं कर रहे, 1/12 नहीं कर रहे, तो आपको 12 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। 12 यूनिट को आप जो है कंपेयर करेंगे मास मान के कार्बन 12 का। सो दिस इज अबाउट द एटॉमिक मास। So by comparing the various atoms with the 1/12 of the mass of carbon atom, we can determine relative atomic masses. But remember that nowadays in the 20th century it is possible to calculate exact atomic mass of an element with the help of an instrument that is called mass spectrometer. With the help of that we can determine the absolute atomic masses of elements. और इसमें भी क्या है, हमारे जो एटम्स हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स। जैसे ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। तो नाउअडेज और ऑलवेज यू कैन से, हमने जब भी एटॉमिक मास लेना है वी हैव टू टेक द एवरेज एटॉमिक मास बिकॉज देयर परसेंटेज अबेंडेंस इन द नेचर इज डिफरेंट, अलग अलग है इनका। तो इसको जो है आपने एवरेज एटॉमिक मास हमेशा मेंशन लेना, रिलेटिव एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास। इस एटॉमिक मास के बाद हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, शॉर्ट में हम इसको GAM भी लिखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, हमारे कार्बन 12 एटम का एटॉमिक मास कितना है? द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इट इज 12 यूनिट्स, इट इज 12 यूनिट और यू कैन से 12 AMU। दिस इज मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। क्या देखा गया है कि अगर हम कार्बन के 12 ग्राम लें, इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज टेकन, अगर हम 12 ग्राम कार्बन के लें, हमने क्या किया, सिर्फ एटॉमिक मास की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर मास लिया है कार्बन का, बट इन व्हाट यूनिट्स वी हैव टेकन इट इन ग्राम्स, हमने इसको ग्राम में लिया है। तो ये देखा गया है कि दिस मास, दिस अमाउंट ऑफ द कार्बन दैट कंटेन एग्जैक्टली
6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। सो इतने एटम का मास कार्बन के हमेशा 12 ग्राम आएगा, और ये हर एलिमेंट के लिए ट्रू है। अगर हम ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 यूनिट। सो इफ यू विल टेक 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल आल्सो कंटेन एग्जैक्टली दिस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस मास ऑफ एन एलिमेंट विच इज इक्वल टू its atomic mass numerically but is taken in units gram, that is called the gram atomic mass, and it is mass of 6.022 into 10 की power 23 atoms of that element, और इसी को हम 1 मोल बोलते हैं। अभी मोल कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट आल्सो, 1 मोल भी बोलते हैं इसको। सो योर 1 ग्राम एटॉमिक मास, that 1 gram atomic mass, that will be equal to atomic mass taken in grams, atomic mass taken in gram। जैसे 1 gram atomic mass of carbon will be equal to 12 gram of carbon, 1 gram atomic mass of oxygen will be equal to 16 gram of your oxygen, and if you go for other elements, chlorine की बात करें तो 35.5 gram of chlorine, that will be the 1 gram atomic mass of chlorine, and that will be also called 1 mole, and that is mass of this much number of atoms। अब इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को हम यूज़ करके, ग्राम एटॉमिक मास के कंसेप्ट को यूज़ करके वी कैन ड्राइव ए रिलेशन बिटवीन यूनिफाइड मास, और यू कैन से एटॉमिक मास यूनिट एंड योर ग्राम। अभी हमने क्या कहा कि 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन, that is equal to 12 gram of carbon, and this 12 gram is equal to weight of 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स। इतने एटम्स का वेट है ये, तो हमारे 1 एटम का वेट कितना हो गया, देयरफॉर वेट ऑफ 1 atom of carbon, 1 atom of carbon will be equal to 12 divided by 6.022 into 10 की पावर 23 ग्राम। ये हमारे एक एटम का मास आ गया कार्बन के, और हम जानते हैं वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन टर्म्स ऑफ यूनिफाइड मास, दैट इज इक्वल टू 12 यूनिट्स और 12 AMU। अगर आप AMU यूज़ करना चाह रहे हैं, अभी भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं, तो आप इसको AMU भी लिख सकते हैं। अब ये भी एक एटम कार्बन का मास है, ये भी एक एटम का मास है, तो दे शुड बी इक्वल इन 2 डिफरेंट यूनिट्स। सो वी कैन से दैट 12 यूनिट्स ऑफ मास विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। सो 12 से 12 कट गया, तो हमारा 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स इसमें आ गया। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस मास विल कम आउट टू बी 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। सो योर 1 यूनिट मास और 1 AMU, that will be equal to 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम ऑफ mass. So this is the relation between AMU and your gram. Next thing is molecular mass. What is molecular mass? अगर डेफिनेशन से जाएं, मॉलिक्यूलर मास, अब क्योंकि मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आपका एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। कंपाउंड के एटम नहीं होते, कंपाउंड के सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन एलिमेंट के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास को हम सीधा सीधा डिफाइन करेंगे, हाउ मच और हाउ मैनी नंबर टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स a molecule
of an element or a compound is heavier than 1/12 of carbon 12 atom taken as 12 यूनिट्स। बस वहाँ पे मॉलिक्यूल की जगह क्या था, एटम था, यहाँ पे मॉलिक्यूल है। बाकी आपका जो यूनिट है जिसके साथ आपने कंपेयर करना है दैट इज स्टिल 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। ये ध्यान रखना है कि किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट विल ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक masses of various elements present in a molecule आपके मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सबके एटॉमिक मासेस को अगर आप जोड़ देंगे देन यू विल बी गेटिंग द मॉलिक्यूलर मास। जैसे अगर हम O2 की बात करें, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है, तो इसमें एटम कितने ऑक्सीजन के, 2 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 यूनिट। सो इट्स मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू 32 यूनिट्स। अगर हम कोई कंपाउंड, ये तो मैंने एलिमेंट के मॉलिक्यूल का निकाला है, अगर हम किसी कंपाउंड का निकालें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इफ समबडी आस्क व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 into atomic mass of oxygen, 3 into atomic mass of oxygen. So if we put these values of atomic masses, then atomic mass of calcium is 40 units, atomic mass of carbon is 12 units and atomic mass of oxygen is 16 units. इनको अगर आप जोड़ेंगे it will come out to be 100 units. So molecular mass of calcium carbonate will be equal to 100 units or 100 AMU. That will be the molecular mass of calcium carbonate. तो आप किसी भी कंपाउंड का molecular mass निकाल सकते हैं by adding the atomic masses of the various element present in a single molecule of that compound. जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास की बात की थी, वैसे ही यहाँ पे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल वैसा ही है जैसा ग्राम एटॉमिक मास था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या GMM। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर, जैसे फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड that is equal to 44 units. Therefore 1 gram molecular mass, 1 GMM, that will be equal to 44 gram of carbon dioxide. मतलब आपने अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मास ले लिया which is numerically equal to the atomic molecular mass of carbon dioxide but the mass is taken in the units gram, then we will say that it is 1 gram molecular mass. And now again it will be the mass of 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स का मास होगा ये। तो अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं तो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द 1 मोल। वैसे थोड़ा बहुत आप जानते हैं, 9th में पढ़ाया हुआ है, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट एट ए लेटर स्टेज। तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर होता है। इसमें ये ध्यान रखना कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास या 1 मोल को हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड इट इज आल्सो इज इक्वल टू 1 मोल।
तो कई जगहों पे आपको 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा मिलेगा। इसी तरीके से अगर कहीं पे आपको 1 ग्राम एटम्स लिखा मिले, दैट मीन्स 1 ग्राम एटॉमिक मास और 1 मोल ऑफ द एटम्स। सो दिस इज अबाउट द मॉलिकुलर मास। होप यू माइट हैव गॉट दिस, समझ आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। नाउ आफ्टर दिस एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस, द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस इज योर मोल। मोल को हम डिफाइन करते हैं बहुत सी तरीके से। बिफोर गोइंग टू द कंसेप्ट ऑफ मोल, लेट अस हैव ए डिस्कशन व्हाट इज ए डजन। व्हाट इज ए डजन? यू नो 1 डजन इज collection of 12 specified objects। यही होता है एक दर्जन। अगर हम कहें कि एक दर्जन, इफ वी से 1 डजन, दैट डजंट मेक एनी सेंस, उसकी कोई सेंस नहीं है। वी हैव टू मेंशन किस चीज़ के एक डजन। वी हैव टू से 1 डजन बनाना, 1 डजन पेन और 1 डजन notebooks. So we have to mention the entity whose dozen is being taken. Until and unless we mention कि ये 1 डजन किस चीज़ का है, 1 डजन make no sense. So this is collection of 12 specified objects in day to day life. हमारी केमिस्ट्री में जो हम पार्टिकल्स को एनकाउंटर करते हैं, वो 2 पार्टिकल्स को एनकाउंटर करते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स। या तो हम एटम्स के साथ डील करेंगे या मॉलिक्यूल्स के साथ डील करेंगे बेसिकली, अगर हम नॉर्मल न्यूट्रल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। अदरवाइज हम किसकी बात करेंगे? या फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या हमारे पास आयंस होंगे। तो हमारे जो पार्टिकल्स केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, मोल क्या है? दैट इज डिफाइंड एज collection of 6.022 into 10 की पावर 23 specified particles। specified particles specified particle का मतलब है हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स हैं। अगर वो एटम्स हैं तो हम कहेंगे हमारे पास 1 मोल एटम है। अगर ये मॉलिक्यूल है तो हम कहेंगे ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स है। 1 मोल ऑफ एटम दैट विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 molecules. And if we say 1 mole of electron, it means 6.022 into 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ये पार्टिकल स्पेसिफाई करना है। अब हमारी डजन के साथ क्या दिक्कत है? डजन को हमने सिर्फ नंबर में डिफाइन किया हुआ है। हम 1 डजन को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, दैट इज 12 ऑब्जेक्ट। केमिस्ट्री में ये एक सुंदरता है कि हम इस मोल को वेट में भी डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको वॉल्यूम में भी डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक थिंग्स। जैसे मान लीजिए हम डजन को वेट में क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? बिकॉज इफ वी कलेक्ट दीज डस्टर्स, 12 डस्टर्स, दे मे हैव वेरिएबल वेट्स। ज़रूरी नहीं है कि हर डस्टर का वेट दूसरे वेट के एग्जैक्टली बराबर हो, दूसरे डस्टर के वेट के एग्जैक्टली बराबर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं हम इस केस के अंदर कि वेट में डजन को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने 12 डस्टर कहीं से लिए। आई विल शो यू दिस विद 2 डस्टर हैं। अब इसके 12 ऑब्जेक्ट लें हम और इसके 12 ऑब्जेक्ट लें, यू क्लियरली सी दैट देयर इज अ डिफरेंस इन मास। अगर हम इस डस्टर को लेके डजन को डिफाइन कर दें इन टर्म्स ऑफ वेट,
और फिर जब इनके उतने ही वेट को लेंगे तो क्या उसमें 12 ऑब्जेक्ट आएंगे? नहीं आएंगे, बिकॉज दिस डस्टर इज लाइटर। इसलिए हम डजन को डिफाइन नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ वेट। लेकिन हमारे केमिस्ट्री में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं दे हैव आइडेंटिकल मास। जैसे मान लीजिए अगर आप कार्बन के एटम ले रहे हैं तो कार्बन के कितने भी अलग अलग एटम्स ले लीजिए, डिफरेंट एटम्स ले लीजिए, दे ऑल विल हैव सेम मास। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के आप कितने भी अलग अलग मॉलिक्यूल ले लीजिए, कहीं से मर्जी ले लीजिए, ऑल ऑफ देम विल हैव सेम मास। इट मीन्स कि अगर हम कार्बन के इतने एटम लेंगे दे विल हैव ए डेफिनेट मास। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लेंगे तो दे विल आल्सो हैव ए डेफिनेट मास। सो हम मोल को जो दूसरी डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड नंबर डेफिनेशन। अपने वर्ड्स में लिख लेना, मैंने इसको कंप्लीटली डेफिनेशन के तौर पे नहीं लिखा हुआ है। यू कैन डिफाइन इट एज ए मोल इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 स्पेसिफाइड पार्टिकल लाइक दैट। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। आप जितना ज़्यादा किसी सब्जेक्ट के नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे उतना ही आपको आसान रहेगा याद करने में। याद करना की जरूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी अगर आपको रिमेंबर करना हो किसी चीज़ को तो योर लैंग्वेज, योर ओन लैंग्वेज विल हेल्प यू। The second definition is in terms of weight। मैं आपको ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन बता के आ चुका हूं। मैंने जो दो चीज़ें बताई थी, 1 ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या कहा था मैंने? ये कि दिस इज 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। सो इन टर्म्स ऑफ वेट, हाउ वी डिफाइन ए ग्राम, दैट इज मोल। ए मोल इज डिफाइंड एज the atomic mass of an element or molecular mass of a compound or element taken in grams, that will be 1 mole। जैसे आपकी सल्फर डाइऑक्साइड का 64 ग्राम अगर आप लेंगे that will be exactly 1 mole। 64 इसका क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। तो आपके इन टर्म्स ऑफ मास, योर एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास टेकन इन ग्राम, दैट विल बी योर 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। समझ में आ गया? तीसरी चीज़ है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम सिर्फ गैस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एवोगैड्रो लॉ में हमने एक एप्लीकेशन की थी जहाँ पे हमने मोलर वॉल्यूम निकाला था। क्या निकाला था? मोलर वॉल्यूम। दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। और आज की डेट में जब हम प्रेशर को बार में लें, इट इज 22.7 लीटर्स एट STP इफ प्रेशर इज इन बार। अगर प्रेशर बार में लेंगे STP पे तो आपका 1 मोल विल बी इक्वल टू एग्जैक्टली 22.7 लीटर्स ऑफ ए गैस। कोई भी गैस हो, हर गैस के केस में इट विल बी 22.7 प्रोवाइडेड योर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर STP एंड प्रेशर इज टेकन इन बार। अगर आप इस प्रेशर को चेंज करके कर देंगे एटमॉस्फेयर में, देन दिस वैल्यू विल चेंज टू 22.4 लीटर्स एट STP इफ प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर। अगर हम प्रेशर के यूनिट एटमॉस्फेयर रखेंगे देन इट विल बी 22.4 लीटर्स, और अगर हम बार रखेंगे तो आपके ये क्या कहलाएगा? 22.7। ये हमारा मोल कंसेप्ट है। ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा अगर हम यहाँ पे एक आध न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस कर लेते हैं हम। जैसे कोई पूछे हाउ मैनी मोल्स 3.01 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन मेक्स, कितने मोल बनते हैं इससे। तो जब आपको नंबर दिया हो
मैं आपको तरीका बता देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। अगर नंबर दिया हो तो, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो आपको ये फार्मूले यूज करने हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल द डेफिनेशंस। अगर आपको नंबर दिया हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स का नंबर दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आप सीधे नंबर ऑफ पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द मोल्स। जैसे इसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो इट विल बी 3.01 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सो इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0.5 मोल्स। इट विल बी 0.5 मोल्स। अगर आपको वेट दिया हो तो वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास, वट एवर इज द केस। अगर आपका मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, एटॉमिक मास है तो एलिमेंट है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पूछे 31 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस कितने मोल्स के बराबर है, तो इसका सीधा सा हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 31 बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस इज 31, सो द आंसर विल बी 1। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेट। इसी तरीके से वॉल्यूम में बात करें तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.7 लीटर। अगर आप प्रेशर किस में ले रहे हैं, बार में, अदरवाइज 22.4 से डिवाइड करना है इसको अगर आप प्रेशर ले रहे हैं एटमॉस्फेयर में। सो बाय यूजिंग दीज 3 रिलेशंस, मैं ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट हटा देता हूं बीच में से, तो ये नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला है। अब कोई आपसे नंबर ऑफ मोल निकलवाने की बजाय पूछ ले कि कितने पार्टिकल्स हैं, आपको नंबर ऑफ मोल बता दे और वो पूछे कितने पार्टिकल हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ। अगर इसी तरीके से वेट पूछे कितने मोल के अंदर कितना वेट है किसी का, तो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो इन दिस वे यू कैन कैरी आउट कैलकुलेशन इन बोथ द वेज। सो दिस इज अबाउट द मोल कंसेप्ट। समझ में आ गया होगा, आई होप सो। नहीं समझ में आया हो तो यू कैन लेट मी नो बाई राइटिंग ए कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। I think this is sufficient for today. So thank you very much.